Assalamu alaikum to everyone. Is my voice clear to all of you? Yes, is my voice clear to all of you? Yes, sir, it's clear. Okay. So this is the last class in which you'll be taught a topic. And after this, we have presentations, which will start in the coming week. And I've already told you about presentations. Do you have two since you have two subjects with me, so you'll have to give two presentation, one for literary discourse and journalistic writing, and second for media discourse analysis. And I've already mentioned about the marks of presentation. 25 members marks are remaining. They'll be given to you. 25 I've already conducted, and 50 will be in the exams. So if you have any question regarding this, you can also ask me. You told me about one topic that was left and that I sent you. This is wordplay. So let's talk about this topic. Let me wait for a minute or for a minute more so that we can have some more students. Have you gone through the notes which I provided you? Have you gone through the notes which I provided you through PDF form? In PDF form, I gave you some or send you some notes. Have you gone through them? No, yes, and no. Have you read the notes which I provided you? Sir, which notes? PDF copies. Have you read the PDF? Sir, topic name? Wordplay. I don't. Okay, sir, I don't think. So you should study or you should read them. I gave you all these things so that you can read them. When you read them, you will definitely understand. You will understand many things, and then you will ask questions regarding those things. What is wordplay? So wordplay involves making jokes by using words in a clever and humorous way. Using words in a clever and humorous way, especially by using a word that has double meanings or different words that have different sounds. Means one word has different sounds. Sometimes we have, one word which has double sounds, two sounds. So such kind of words are very useful in wordplay because it is something that is used for making jokes. Wordplay, another definition of wordplay is that it involves making jokes by using the meanings of words in an amusing or clever way or witty way. Then further, if we study, we can find that wordplay, and it is also called play on words. अल्फाजों के साथ खेलना is the clever and witty use of words and meaning. It involves using literary devices like or techniques like consonants, assonance, spelling में छेड़छाड़ कर सकते हैं, alliteration, sounds में कर सकते हैं, onomatopoeia, rhyme, acronym, pun and slang. ये तो चंद है, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं literary devices or techniques which can be used for wordplay. These are used to form amusing and often humorous written and oral expressions. इनका इस्तेमाल किया जाता है अमूमन ताकि amusing और अक्सर ह्यूमरस रिटन और oral expressions बनाने के लिए. Using wordplay techniques depend on several different aspects of rhetoric, like spelling. You can also make changes in spelling and you can make it like this. Phonetic, जैसे sound and pronunciation of words होते हैं, semantics, meaning of words. इन सब में changes करके और wordplay is something that is made.
For example, what is this? You can see I've written 2 sentences. Can anyone read the first one? Yes. Is my voice coming to you? Yes, sir. पहले वाले को पढ़े जरा. Can कोई- you can as a canner can a can. 5 दफा आपने ब्रेक किया है. कैन यू कैन एज अ कैनर कैन, इस तरह से बोलेंगे तो सामने वाला तो बेचारा परेशान हो जाएगा. तेजी में बोले इसे. Can you can as a canner can a can. या ये असल में क्या है? व्हाट इज दिस बाय द वे? सर ये तो टंग ट्विस्टर टंग ट्विस्टर है ना. तो इसमें साउंड के साथ छेड़छाड़ गई है. सेम साउंड वर्ड्स आर यूज हियर. इट हैज नो मीनिंग एट ऑल. ग्रामेटिकली भी करेक्ट है बट हैज नो मीनिंग and it works as a tongue twister. Can you can as a canner can a can. So it is the example of word play. You are playing with words. You are using here same sound words and you have made a tongue twister. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. यहाँ भी वही सूरत हाल है. You are repeating word and for means हम repeat करते हैं. So you are repeating words here and you have made a tongue twister. How are you? क्लास में हम किसी आप किसी से कहें हवा आ रही है. आप इसको जब तेजी में पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हवा आ रही है. तेजी में पढ़ेंगे तो कैसे महसूस होगा? ये How are you? हवा आ रही है यू महसूस होगा. हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू. उसने कहा आ रही है, आपने कहा व्हाट डू यू मीन बाय आ रही है? हाउ आर यू. जब आप तेजी में बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि साउंड्स आपस में असिमिलेट कर जाते हैं. तो उसमें फिर इस तरह के साउंड जो है वो थोड़ी सी में तब्दीली आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल ये जो एंड है, अगर आप इसको तेजी में पढ़ेंगे क्या ऐसे हम पढ़ेंगे? अब यहाँ पे एंड नहीं रहेगा, ये एन बन जाएगा. क्या साउंड देगा यहाँ पे? एन. ये वाला. John and I went there. John and I went there. John and I went there. Are you getting me? अब ये एंड Yes, जो sir. है जॉन जो है इसके आखिर से भी थोड़ा सा साउंड कटेगा. यहाँ से तकरीबन आधा आधा कट जाएगा और ये आगे वाला भी थोड़ा सा कटेगा. ये सब आपस में असिमिलेट कर जाते हैं. दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन. सो जॉन एंड आई वेंट देयर. जॉन एंड आई वेंट देयर. ये आपके पास है. I am going to meet him. ठीक है. तेजी में पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? I am gonna meet him. ये बनेगा ना ये. I am gonna meet him. Yes, sir. I am gonna do it. I gotta go. Have to go. So when we speak, what happens that there are many words which are put together. Then this doesn't happen. मिसाल के तौर पर इसको हम क्या कहते हैं? Par. क्या कहते हैं? Our par. पावर. राइट. अब अंग्रेजी में कोई पा का साउंड नहीं है. अंग्रेज इन इंग्लिश देयर इज नो दिस साउंड. ये जो हमारे पास पा है ना, ये अंग्रेजी में नहीं है. अंग्रेजी में कौन सा साउंड है? ये वाला साउंड है, फा. आर यू गेटिंग मी? इन इंग्लिश देयर इज नो पा साउंड बट इंग्लिश देयर इज पा साउंड. तो जब ये हम इसे पढ़ेंगे अंग्रेजी में तो क्या पढ़ेंगे? फा. पावर. Par. पावर. इसी तरह से ये 3 लेटर्स हैं पा का टा.
they are called pa ka ta. So here it will be power, kitchen, tower. ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पावर, किचन, टावर, तो हम इसको पाटा पा काटा कर देते हैं, हालांकि पा काटा नहीं था, फा खा था. Sir, isn't it? It's a American and British accent. No. You just listen to the sound, so you'll not find pa kata. You'll find fa. These are aspirated sounds. इनको हम aspirated sounds कहते हैं. They also do not pronounce the last word R. हाँ, वो तो अलग चीज है ना. That is another thing. That is British American difference. I'm telling you about thing which is common. ठीक है, तो ये फा खा था sounds होते हैं, and they are aspirated sounds. इनको हम aspirated कहते हैं क्योंकि फेफड़ों से निकालना पड़ता है. ये डायरेक्ट आप नहीं निकालेंगे. फा, जिसे फा खा, तो अंदर से आवाज निकलेगी आपके ना लंग से. So power, potato, police, वो कभी नहीं बोलेंगे पुलिस, police, pure. ठीक है, अब इसको अगर आप उर्दू में जब यूज करेंगे तो आप नहीं कहेंगे पावर किधर है भाई, आप ये नहीं कहेंगे उसे टावर खाएं. ठीक है, जैसे अंग्रेज बोलता है, जब अंग्रेज उर्दू बोलता है तो हमें उस पर हंसी आती नहीं आती. अंग्रेज उर्दू बोलता है तो हमें उस पर हंसी आती है कि नहीं आती. उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अंग्रेजी में उर्दू बोलता है. अब हम जब उर्दू में अंग्रेजी, जब हम इस्तेमाल करना चाहें उर्दू में अंग्रेजी, तो हमें क्या होगा, करना होगा अंग्रेजी को उर्दू में डाल के हम बोलेंगे. फिर आप पावर कहेंगे. पावर कहाँ है भाई? किचन कहाँ है? टावर कहाँ है? ये प्योर नहीं है. अब वहां अगर आप उर्दू के अंदर अंग्रेजी का लहजा इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक किस्म का वर्ड प्ले साउंड के साथ. आपके प्योर की, मुझे प्योर क्यों चाहिए, मुझे क्या कहेंगे उसे, टोमेटो चाहिए. फिर आपको इस तरह मुंह बना के बोलना पड़ेगा. अभी तो हम कहते हैं टोमेटोज चाहिए, टोमेटो चाहिए. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक पीपल लाफ. एंड व्हाट आर वी डूइंग हियर? ये तो आपको पता है, व्हेन वी यूज इंग्लिश वर्ड्स इन उर्दू, सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि हम उसकी जो जमा है उर्दू के तहत बनाते हैं. ऐसे ही है ना भाई. आज मैं देख रहा था टीवी पर बेटर लिखा हुआ रहा था. पहले तो मुझे भी हैरत हुई कि बेटर कौन है भाई. बाद में पता चला वो हमारे खिलाड़ियों को बेटर कह रहे हैं, बैट्समैन को बेटर कह रहे हैं. ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा था. और पहले आता था इस तरह लिखा, बैट्समैन नो ने, बैट्समैन. ये बैट्समैन इंग्लिश का वर्ड है. इसका उर्दू वर्ड हिंदी वो इंडियंस वाले इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज. तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी को उर्दू में लेते हैं, फिर उसकी जमा किस तरह बनाते हैं, उर्दू के तहत बनाते हैं. ये नहीं बनाते बैट्समैन्स ने, ये तो नहीं कहते ना कि बैट्समैन्स ने इतने, बॉलर्स ने इतने काम कर दिए. हम लोग क्या कहते हैं, बॉलरों ने, यही कहते हैं ना. तो अगर आप इसको कहेंगे बॉलर्स ने बहुत सारे विकेटें ले ली, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ड प्ले हो जाएगा. दिस विल बी अ काइंड ऑफ यू आर मेकिंग पीपल लाफ और यू आर प्रोवाइडिंग देम एंटरटेनमेंट. तो जो लोग अल्फाजों से खेल रहे होते हैं, सो दे समटाइम प्ले विद साउंड, समटाइम दे प्ले विद देयर डबल मीनिंग, समटाइम दे प्ले विद वर्ड्स व्हिच हैव more than one sounds, right? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये अल्फाज से खेलने के मुख्तलिफ तरीके हैं. मिसाल के तौर पर he is a bald man, क्या मतलब है इसका? He is a bald man. What does it mean? He is a bald man. He's a bold man. We all are mango man. Yes. Yes, he is a bald man. Hurry up. कुछ जहन में आ तो रहा होगा ना आप लोगों के. What is coming into your mind? भाई देखें, BOLD भी इसको बोल्ड पढ़ते हैं, and BLD बाल्ड नहीं होता, इसको ही बोल्डली पढ़ते हैं. They both are same in pronunciation. They have the same pronunciation. वो अलग बात है कि हम pronunciation को letters को देख के कर रहे होते हैं, तो letters देख के pronunciation नहीं होती. So BALD bald and BOLD bald both are same, have the same pronunciation. So he is a bold man. आप अगर इसको रिटर्न में लिखनी है तो फिर तो बात समझ आ रही है, लेकिन अगर आप इसको बोलेंगी तो आपने इसको बोल्डली पढ़ना होगा. तो उससे क्या सेंस जा रहा होता है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट ये भी लग रहा होता है कि बोल्ड मतलब BLD बोल्ड मीन्स गंजा, जिसके सर पे बाल ना हो. सो ही इज अ बोल्ड मैन मीन्स ऑल्सो वो सर से गंजा है. और BOLD बोल्ड
अगर होगा तो उसका मतलब है he is a brave person. Are you getting me? The Yes, sir. king, the commander is a bold man. अब कौन से bold की बात कर रहे हैं? If context is there, context है तो clear है, otherwise नहीं. We all are mango men. Mango का मतलब क्या है? आम. आम है ना भाई? तो यहाँ हमने अल्फाज के साथ खेला. We all are mango men means we all are common men. So this is how word play goes on. Do you have any example? Now here you can see there is one example. Here are some simple jokes that use wordplay for their humor. What did the ram say to his wife? I love you. I love you. ये जो आपके पास से, how do we pronounce it? यू को सर पास्ट में बोलेंगे तो ई वाली साउंड आएगी. ईव. Eve. अब आप देखिएगा आपके सामने लाइव एग्जांपल. सामने क्या प्रोनाउंसिएशन आ रही है? क्या प्रोनाउंसिएशन आ रही है? सर आवाज नहीं आती इसकी. आपको आवाज नहीं आ रही? नो सर. किसी को आवाज नहीं आ रही? यस, आवाज. आप में से किसी को आवाज नहीं आ रही? यस सर, नहीं आ रही. नहीं आ रही. नो सर. चलिए सिंबल देख लें. सामने आप सिंबल देख लें, ये यू है. ठीक है, ये सिंबल आईपीएस सिंबल्स है. यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू. अच्छा, अब मैं डाल रहा हूँ दूसरा वाला यू. ये दूसरा, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? देखिए सामने, वही है ना? सेम प्रोनाउंसिएशन है ना? यस सर. तो इसका मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन ईव नहीं है. क्या है? यू. यू. प्रोनाउंसिएशन ना पता ये प्रॉब्लम. So what did the ram say to his wife? रैम कहते हैं मेंढे को. रैम, उसने अपनी वाइफ से क्या कहा? आई लव यू. ठीक है, तो आई लव यू, यू से क्या मुराद? यहाँ पे रिटर्न में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन यू है. अब यू से मुराद क्या है? वो सामने वाला बंदा भी हो सकता है, मतलब वो सामने जो उससे बात कर रहा है वो भी हो सकता है, और यहाँ पे ये भी मुराद है जिससे वो उसकी क्या कहेंगे, वाइफ से मुराद क्या है? उसकी फीमेल. ठीक है, तो मजाक के तौर पर उन्होंने कहा कि व्हाट डिड द रैम से टू हिज वाइफ? सो ए ने कहा आई लव यू. Puns are sometimes some of the most frequently used forms of wordplay. ये है pun. When spoken aloud, I love you sounds like I love you, but the word you is the term for a female ship. लेकिन इसका मतलब क्या है? Female ship. Rem की female है. What did the my niece say when the girl opened the refrigerator? Close the door, I am dressing. क्या मतलब है इसका? My niece say, what did the my niece say when the girl opened the refrigerator? Close the door, I am dressing. क्या इसके बारे में करें? The joke relies on two meanings of the word. Dressing for its humor, one for dressing as in putting on clothes, and one for mayonnaise being a type of salad dressing. क्योंकि mayonnaise खुद भी salad dressing के लिए इस्तेमाल होता है. So close the door, I am dressing. बात समझ आ रही है इसकी? यस सर. फिर बता रहे हैं कि there are only few polysemy which has multiple meanings. Like we can encounter two or more words the same form and related meanings. We have what is technically known as polysemy. Polysemy can be defined as one form having multiple meanings. जैसे in the nursery rhyme, Mary had a little lamb. We think of a simple animal. ये आपके पास है, मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ आपको. Here. Mary had a little lamb. We think of a small animal, but in the comic version, Mary had a little lamb, some rice and vegetable. इसमें क्या मतलब इसका आ गया? We think of a small amount of meat. हम कहते हैं ना यार मुझे टांग चाहिए,
मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? लेग पीस। लेग पीस तो आपने कहा ना, लेकिन हम उर्दू में भी तो कहते हैं ना क्या, मुझे टांग चाहिए। कोई कहता है मुझे गर्दन नहीं चाहिए, कोई कहता है मुझे गर्दन चाहिए, कोई कहता है मुझे कलेजी नहीं चाहिए या कलेजी चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉन्टेक्स्ट के बगैर हो तो इस पर मजाक बन सकता है, इसको भी आप वर्ड से प्ले कर सकते हैं। आई नीड अ लेग, लेग पीस, आई नीड अ लेग। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात करें, इन मेरी हैड अ लिटिल लैम, हियर लैम मींस एन एनिमल एंड इट कैन आल्सो बी अ मीन। अगर वो ये कहती है मेरी हैड अ लिटिल लैम सम राइस एंड वेजिटेबल, इट मींस हियर शी इज टॉकिंग अबाउट मीट। जैसे हम कहते हैं ना मुझे चिकन, चिकन मुर्गी को भी कहते हैं, चिकन उसके गोश्त को भी कहते हैं। सो आई हैव सम चिकन राइस एंड वेजिटेबल, तो यहाँ चिकन से मुराद क्या हो जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट गोश्त of meat of chicken। और इसके अलावा without this you can see it means that animal। तो इस तरह से you can exploit such situations। The polysemy of lame allows two interpretations, we make sense of the written why। फिर उसके बाद why are trees often mistaken for dogs, why are trees often mistaken for dogs, by recognize the homonymy in the answer because of their bark। डॉग्स, ट्रीज, एक आपके पास वर्ड है बार्क, ये जो आपके सामने वर्ड है बार्क, इसका एक माना है छिलका, दरख्त का जो होता है छिलका, और दूसरा माना इसका क्या है, डॉग से क्या रिलेटेड है इसका, भौंकना, सर जैसे वो, हाँ भौंकना। भौंकना। इसके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक पीपल लाफ। दिस इज वर्ड प्ले। पॉलीसेमी मींस वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। जैसे मैंने आप लोगों को गालिबन मिसाल दी होगी एक इस वाली की, देयर इज अ सेंटेंस, डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, व्हाट डज इट मीन, डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट? सर एक इंटरेस्ट है, दूसरा सूद है। इंटरेस्ट में सूद। तो डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट? तो अक्सर लोग समझते हैं कि भाई सर बात करें, दिलचस्पी की बात कर रहे हैं, क्या आपको दिलचस्पी में दिलचस्पी है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू दिलचस्पी, सेकंड वन इज अ नाउन व्हिच इज रिलेटेड टू सूद, दैट इज रिलेटेड टू सूद। डू यू टेक इंटरेस्ट इन सूद, इट मींस कि आपको सूद में दिलचस्पी है। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग और वी आर प्लेइंग विद वर्ड्स। और एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल अगर आपको याद हो, क्या है वो, बुलेट्स आर रनिंग, वॉकिंग, सॉरी, वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट। सुना है कभी आपने? सर ये भी नहीं सुना आप लोग? क्या सुनते, कुछ सुनता भी, सुने भी आपने नहीं? लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स आप लोगों को पता नहीं सर एग्जांपल्स। बुलेट्स आर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट, व्हाट डज इट मीन? नाम है सदर का। हाँ सर ये सदर के है, कोई एरिया का नाम तर्जुमा किया ना लाइन से एरिया, लिया है। वो तो मुझे पता है, लेकिन हम तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, वी आर ट्रांसलेटिंग वर्ड फॉर वर्ड, जैसे वो हम कर रहे होते हैं। अगर आपको गालिबन याद हो कि ओपन द फैन, कहते हैं ना स्टूडेंट्स, क्लोज द फैन। कहा होगा आप में से भी किसी ने कहा होगा कभी ओपन द फैन। तो ओपन द फैन से मुराद क्या होता है, पंखे को स्क्रू ड्राइवर से खोल दो। वो असल में कहना चाहते हैं स्विच ऑन द फैन और स्विच ऑफ द फैन, ये कहना चाहते हैं। So you can play with words. Bullets are walking in the president। आपने इसके तमाम जितने सदर में गोलियां चली हैं सबका आपने तर्जुमा कर दिया, सबके लिए इंग्लिश इस्तेमाल किया। सदर को प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, गोलियां बुलेट्स कहते हैं, ठीक है सर लेकिन किसी और एरिया सॉरी का तो हम छोड़े उसको, छोड़े जगह के नेम को तो नहीं करेंगे। तो ये तो है, यही तो पन है ना, यही तो सॉरी क्या कहेंगे, यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स, आप यू आर प्रोवाइडिंग फन टू जगह पीपल। जगह के नेम को तो हम
ट्रांसलेट नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे सर ना। ये तो प्रेसिडेंट ये कहना चाह रहा है सदर, मतलब कराची। मतलब यहाँ कराची में सदर में गोलियां चल रही हैं इस तरह से। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया, तुम सब वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, सदर, सदर को भाई प्रेसिडेंट कहते हैं ना, गोलियों को टैबलेट्स कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते? Yes, sir. कोई अगर कहता है तो आप इसको गलत कह सकते हैं, मुझे ये बता दें। कोई No, मजाक sir. कर रहा है ना कोई, तो आप गलत तो नहीं कह सकते ना, वो आपको सही करके दे रहा है भाई। जैसे हमारे कुछ अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, तो आप उनको गलत तो नहीं कह सकते ना। आई एम गो टू कॉलेज, ठीक है, तो Sir, English comes to me. हाँ, इंग्लिश कम्स टू मी, ठीक है, इंग्लिश मुझे आती है। डज इंग्लिश कम टू यू, क्या आपको इंग्लिश आती है? English आती है। ठीक है, तफरी के लिए यू आर जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स, ठीक है, इंटेंशनली यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स। जो लोग जो करते हैं, सुनाते हैं लतीफ़े वगैरह जिस तरह, तो वो क्या करते हैं, अल्फाजों के साथ ही तो खेलते हैं। They sometimes play with double meaning, sometimes they play with semantically, sometimes they play with sound and like this, कभी वो नफोरा और ये सब चीज़ों के साथ they very technically play, and this is how they produce such situations. So English comes to me. Does English come to you? No, it does not come to me. और इसके अलावा अगर आप सोचेंगे तो you'll find many other such items. Acronym. This is also alliteration. Is a technique expressed by repeating the same first consonant sound in a series of words. You are probably pretty familiar with this. So here we go. Peter Pipper picked a peck of pickled peppers. क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है. But they are playing with sounds. जैसा मैंने can you can as a can बताया. Playing with sounds. Assonance. वही आपके effect created when two syllables in words that are close together have the same vowel sound but different consonant. The fool called a duel with a mule. The shells, cheese, shucks are delicious. Double intender. फिर idioms को देख लें आप, बहुत सारे idioms भी ऐसे हैं कि जिनसे आप खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर it is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा? बारिश में कुत्ते और बिल्लियां गिर रहे हैं। Butterflies in my stomach. You have caught a cold. अब ये cold कोई कैच थोड़ी कर सकता है। Rise and shine. Chill out. So some idioms you probably hear every day. फिर और भी आपके पास है, ठीक है, time is very short, that's why I'm running through pun. Spelling के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं. Crispy bacon. Whose name is Crispy Bacon? So with spelling you can do repetition, rhyming, slang words. Now what is the importance of wordplay? So wordplay's use extends far beyond jokes and humor. It makes language more, ये language को unique बनाती है, more interesting and more witty and amusing than using standard words and phrases. Wordplay has had an important role in rhetoric, going as far back as the classics of literature and philosophy. आपको हर from Plato to Shakespeare you'll find the use of wordplay. It is a huge part of all languages and cultures around the globe, used not only by talented writers, speakers and storytellers, but also all people of all ages. यानी कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ talented writer या speaker या storyteller इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सभी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं. As soon as kids start telling jokes, they start using wordplay. जब बच्चे भी एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, तो वही wordplay का इस्तेमाल करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मस्जिद एट आवर हाउस, फॉर एग्जाम्पल. Let me give you simple examples. कुछ यहाँ पे कल्चरल एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, एंड यू कैन फाइंड सम मोर थिंग्स फ्रॉम नेट एज वेल. एग्जाम्पल्स उसकी मस्जिद आप देख लीजिएगा. अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको आप किस तरह से ये वर्ड प्ले होता है. और देयर आर मेनी अदर literary devices which can be used for wordplay. Is that clear to all of you? What is wordplay? Yes, sir.
Okay, now if you have any लफ्जों के question, साथ खेलना. if you have any question now, you can ask me regarding this one and regarding. We will have one revision class, but not now. By the end of when all the presentations are over, we will have that class. जिसमें आप को अगर कोई टॉपिक के हवाले से प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. And I will tell you about the topics which you are not supposed to study. सर एक मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस एक विजन क्लास रखें इम्पोर्टेंट. दोनों की रखेंगे, अभी नहीं. पहले अभी आप प्रेजेंटेशन दे दें. First you give your presentation. First you give your presentation, then inshallah we will arrange one class. प्रेजेंटेशन कितने दिन में सर लेंगे आप? कोशिश यही करूंगा कि जल्दी ले लूं. I will try to do all these things before 10th of next month. कोशिश यही होगी उससे पहले हो जाए. And then we will have one class each for media discourse analysis and literary discourse and journalistic writing. दोनों के लिए एक रिवीजन क्लास रख देंगे. ओके सर. सर ये वर्ड्स प्ले की टाइप है, रेमिंगटन स्लैंग्स वर्ड्स वगैरह. Yeah, these actually आपसे मैंने कहा था ना कि by using all these we can do what? We can play with words. We can play on words. These are the techniques. Spelling, sometimes we change with the idioms को देख लें हम. बाज़ औक़ात हम idioms का इस्तेमाल करके we play with words because idioms have different meanings from their. Most of the idioms have their different meanings from their real meanings. तो उससे हम play करते हैं. जैसे मैंने कहा कि it's raining cats and dogs. अब जिसको नहीं पता cats and dogs के बारे में तो वो इसको कैसे लेगा? जब आपको पता है cats and dogs के बारे में तो it's easy. But if you don't know about this तो आप इसका literal meaning लेंगे. इसका मतलब ये कि what do you mean by it's raining cats and dogs? तो आप ये सोचेंगे कि ये बात कर रहा है कि बारिश हो रही है और कुत्ते बिल्लियाँ अजीब से इससे बात करें. I have butterflies in my stomach. What does it mean? It means that my stomach is not in a proper order. तो अगला इसको कैसे इसको लेगा? तो मतलब कहने का sometimes we can also use idioms. We can play with words, play on words. Any problem regarding presentation? Once again, let me remind you, presentation will be you have to give both presentation online, and you have 8 to 10 minutes. You have to prepare slides, and I have already shown you how to prepare slides. बताया ना आप लोगों को? Do you remember? Yes sir. यस सर. तो उस तरह से आपने स्लाइड बनाना है. 6 से 7 पॉइंट्स आपने इसमें मेंशन करने हैं, राइट? और पहला जो आपका इंट्रोडक्शन और लास्ट में. यस, मैंने कहा सर प्रेजेंटेशन पहली तारीख से शुरू करेंगे ना? कब से कहा है मैंने आपसे, आप लोगों से? व्हाट इज द डेट? फर्स्ट है. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट, राइट? सर आप लेक्चर अपलोड कर दिए? हाँ, मैंने आई हैव uploaded all the lectures of literary discourse and journalistic writing except this one. मीडिया डिस्कोर्स के करने. ओके सर, वो कल तक वो भी कर दें प्लीज. हाँ, वो कर दूंगा कल तक. प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर कुछ पूछना है so you can ask me. Still you have 4 minutes. एक 5 मिनट्स के सब, क्योंकि 5 मिनट्स एक्सीड कर सकते हैं. 5 minutes means हर एक की प्रेजेंटेशन की टाइमिंग सर 8 to 10 minutes. 8 to 10. ओके. 8 to 10 minutes. In this duration I will also ask you questions. आपने 8 से 10 मिनट में देना प्रेजेंटेशन, then I'll ask you some questions and then your presentation will be over. तो सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग सुनिएगा प्रेजेंटेशन को, so that you can also learn many things, because these topics will also be given in the exam in a different way. तो इससे क्या होगा कि आपकी बगैर मेहनत की तैयारी भी होती रहेगी. Yeah, still you have 3 minutes. If you have any query, any question, you can ask me. This will be the last class in which we have topics. Now, inshallah, we are going to start. I'm going to start your presentation from coming week, from the first of the coming month. Yes. सर मेरा टॉपिक एग्जांपल है डायरेक्ट मूड ऑफ एड्रेस. उसमें आपने बोला है कि ऐड टू 10 एडवर्टाइजमेंट दो. सर वो मैं एडवर्टाइजमेंट एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर से उठा सकता हूँ? कहीं से भी उठा लें, बस वो जो मैंने बताया वो ना, इसके अलावा कोई भी उठा लें. नेट से उठा लें, कहीं से भी उठा लें. You have to tell what, first of all, what is
interpolation or what is mode of address, then you have to tell about direct mode of address. What is called direct mode Yes, of sir. address? Okay, then you have to Yes, give some sir. examples. Then you have to define those examples. Okay, how do you see Yes, sir. say that it is a direct mode of address? यस सर, उसका एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस एग्जांपल जी, जो जी। दे रहा हूं इंटरफेरेंस क्या है। जी जी, कि वो Okay, डायरेक्ट thank मोड ऑफ you, sir. एड्रेस कैसे क्यों कह रहे हैं उसे? यस सर। सर हमारे मीडिया का पेपर भी ऑनलाइन होगा? नहीं, एक पेपर ऑनलाइन होगा और एक पेपर फिजिकल होगा। ओके, मीडिया का फिजिकल मीडिया का फिजिकल फिजिकल है होगा, सर। जबकि लिटरेरी डिस्कोर्स Yes, एंड जर्नलिस्टिक literally. राइटिंग ऑनलाइन होगा। यस, ऑनलाइन। एंड डेट्स यू नो वेरी वेल। डेट्स क्या है? 13 एंड सर 13 जनवरी से स्टार्ट। 13 दिसंबर, जनवरी, 13 दिसंबर दिसंबर 13 दिसंबर एंड दिसंबर है 16 आई सर। थिंक। सॉरी Only 1 minute 40 seconds. If you have any query, you can ask. Yeah, that's all. No question. So it means now we are going to see, we are going to meet inshallah on presentation day.